Hello my friend, welcome. So I hope my screen is visible to you. Anyone, please let me know क्या आपको screen दिख रही है. If screen is visible, then we will start our IBPS SO prelims 2024 memory based paper. And screen visible है. Please type here. Yes, okay. Uh, Krishna आ गई, युवराज है. Okay. So before starting, there is one thing that I want to tell you that the question that you have asked. First is we are having the P exam, then we are having the mains exam, and then we are having the interview. And this is all for IBPS SO. Now, see, my friend, in pre to mains exam, when you want to go, so the number of students that they have passed, it is into 10. And from mains to interview, they usually pass into 3 students. So let's suppose there are 100 vacancies. Let's suppose there are 100 vacancies we are having. So in pre, let's suppose 50K students have given the examination. ठीक है. So जो आपका pre है उसमें 50K student have given the examination. Now they are going to pass only 10 times of the vacancies. तो vacancy जितनी होगी आपकी होगी, they are going to pass only 10 times of the vacancies over here. So from 100 to 10. So they are going to pass only and only 1000 students over here. Now from mains to interview they are going to pass into 3 times. So it means the vacancies जो आपका x factor है, so x into 3. So they are going to pass only 300 students. Now the student has asked a question. So कि student ने question पूछा था, how much percentile is required to qualify the exam. So in my opinion, if your marks are in, you can say 90 percentile, not percentage, it is percentile, देन यू आर इन ए गुड जोन. इसको हम क्या कहते हैं? गुड जोन जिसको कहते हैं, सेफ जोन जिसको कहते हैं, बिकॉज यू आर इन द टॉप 10. तो यहाँ पे आपका जो, अगर आपका जो भी मार्क्स आएगा तो वो आपकी जो रैंक है वो टॉप 500 के अंदर रैंक है. सो दे आर गोइंग टू पास 1000 स्टूडेंट्स एंड योर रैंक इन द टॉप 500. योर रैंक इज इन टॉप 500. So there are very very high chances that you are going to easily clear the mains examination. You don't have to worry about the cutoff. Okay. So I hope I have answered. And युवराज, एक बार एग्जाम हो जाए उसके बाद देखते हैं अपन ना. Okay. So I hope you are having pen and paper with you. So here we are going to see the all 50 questions. So I will give you a clock also. So you need to give the answer. So I am going to attempt the paper as I am going to attempt in the real life also. So I will ask you, do you want to solve the question or you want to skip? So just assume that you are also giving the examination over here. Okay. So this is the first question which is visible on your screen, and I will give you approximately 50 seconds to solve the question. So do solve the question. So you can zoom in also by using uh, 2 finger. You can also zoom the screen. आप अपने हाथों की दो जो अंगुलियां हैं उनसे स्क्रीन को भी आप जूम करके देख सकते हो अगर आपको क्वेश्चन विजिबल नहीं है तो. यहाँ पे देखो आपका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है. Okay, time is up, so let's see the answer over here. So the answer of this question is 14, and this is the multiplication. तो जो आपका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वो हो रहा है 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5. Like this, we are having the multiplication over here. So here we need to find the wrong term series. So I also made a mistake. So I believe आपने mistake नहीं की होगी. Okay. Moving to next question. Again another question which is visual on your front. एक मिनट इसको भी अपन दे लेते हैं.
तो एनीवन, किसी का आंसर है? 15 सेकंड और है। तो मेरे हिसाब से 448 इसका आंसर है। तो एक बार आपका देख लेते हैं, व्हाट इज योर आंसर गाइस? किसी युवराज का थोड़ा सा रॉन्ग है। तो जो भावना, रोहित, ओंकार का भी सही है। वेरी गुड, नाइस स्टूडेंट्स। तो दोस्त हु हैव गिवन द नाइस, और आई रिक्वेस्ट यू प्लीज आल्सो गिव द आंसर। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अनदर रॉन्ग नंबर सीरीज, अनदर 1 मिनट टू यू। इसमें भी देख लो कि नंबर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। सो नेक्स्ट स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन इसका ये है आपका आंसर। -13, -26, 39, 52, 65, लाइक दिस। 14, 10, 1, 15 का 30, 10, 3, 2, 1 into 3, 12, ठीक है। तो आंसर आया आपका किसी का? मेरा ऐसा कुछ × 3 × 4 ऐसा मुझे लग रहा है। तो लेट्स सी व्हाट इज योर आंसर। यस यस, 875, 870, क्या बात! सबसे पहले आंसर किसने दिया? फर्स्ट आंसर गिवन बाय प्रभजोत, गुड, भावना एंड बिड, रोहित, युवराज, ओंकार, चेतन। युवराज ने तो आंसर भी दे दिया, गुड। तो कृष्णा का भी आया है, वन यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। सो ऑल ऑफ यू हैव गिवन द राइट आंसर। नंबर इंटू 2 + 1, so like this. Okay, moving ahead to next question. Yes, yes Krishna, you are right. This is little bit tricky. ठीक है, अब तक जो हमने देखे थे क्वेश्चंस वो ये थे। Now what examiner is doing, he is doing some little bit more calculation so that you can also not stuck here. So अब क्या, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन, रॉन्ग नंबर ये स्टेटमेंट चेंज है बस। आपको पहले रॉन्ग नंबर सीरीज निकालना है, देन दिस the option you need to follow. So this question take more time. Number is dismissed. What is the answer? 2 आप only दे रहे हो 2। देख लेते हैं। Yes, you guys are absolutely right. So the value of m we are having 4 over here. So this is the incorrect number over here. And when we are going to add 6 over here, it will become 450. So आप add कर लेना. So it will is 9. So 9 is a number, and it is not a perfect cube over here. So option 2. So the student who have given Jaden and Prabhajot, you are right. Next question. So again, wrong number series hai. So this is the last question of wrong number series. Okay.
Okay. Time is up. So let's see anyone has given the answer over here. किसी का आंसर आया है तो देखो यहाँ पे अगेन मल्टीप्लीकेशन हो रहा है अगेन वी आर हैविंग द मल्टीप्लीकेशन ओवर हियर मल्टीप्लाई 3 845 445 sorry 445 yes so the student who have given the 445 you are absolutely right so this is the solution over here so this question was of little bit difficult level मेरे को थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन लगा हो सकता है आपको इजी लग गया होगा ये क्वेश्चन मेरे को तो हार्ड लगा दोस्तों मेरे को ठीक है सो द आंसर गिवन बाय युवराज का क्या बात है सही है प्रभुजोत नाउ यू थोड़ा सा जेडन प्रभुजोत सही है मल्टीप्लाई शुक्ला शुक्ला का भी आंसर नहीं रोहित का भी सही आंसर है नाइस रोहित नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन ओवर हियर सो इसको अभी सॉल्व करें या स्किप करें व्हाट यू आर सेइंग व्हाट यू गाइस आर सेइंग स्किप और सॉल्व अगर आप एग्जाम में दे रहे हो लेट सपोज यू आर गिविंग द एग्जामिनेशन तो व्हाट द डिसीजन यू आर गोइंग टू मेक देखो मेरी जो अप्रोच होती है व्हाट आई यूजुअली डू इन माय एग्जामिनेशन व्हेन आई यूज्ड टू गिव द एग्जामिनेशन मेरा ये रहता है कि सबसे पहले अपने जो स्पीड मैथ के क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करना है माय फर्स्ट टारगेट इज टू गेट मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्टेड इन मिनिमम टाइम मेरा क्वेश्चन ही रहता है कि सबसे पहले स्पीड मैथ के क्वेश्चन करो उसके बाद मैं डीआई वगैरह उसको सॉल्व करता लास्ट में मैं अर्थमेटिक को सॉल्व करता हूँ दिस द ट्रिक दैट आई यूज टू फॉलो देखो सबका अलग अलग हो सकता है मेरा जो अप्रोच होता है वो स्पीड मैथ है उसके बाद डीआई है उसके बाद में लास्ट में मैं अर्थमेटिक अटेम्प्ट करता हूँ तो वी आर हैविंग द डीआई ओवर हियर सो वी विल स्किप ठीक है तो यहाँ पे लिख लेते हैं ना क्वेश्चन जो स्किप किया था ना क्वेश्चन सिक्स को अपन ये डीआई है अभी स्किप कर रहे हैं तो एक बार आप देख लेते हैं आप क्या कह रहे हो स्किप स्किप ठीक है आप पहले अर्थमेटिक करते हो जेडन ओके नाउ दिस इज क्या बात है क्यों पूछ लिया इसने तो हो जाएगा सॉल्व ऐसा कुछ नहीं है 1 मिनट के अंदर देखो ये वाला तो आपका क्यूब है 12 का है 12 का क्यूब है तो 12 एक्स का स्क्वायर है माइनस एक्स की वैल्यू निकलेगी कैसे यार अच्छा एक्स कह रहा है कि ये नंबर क्या है 470488 इसको स्किप भी कर लेते हैं ठीक है 1 मिनट दे लेते हैं सपोज किसी का आंसर आ जाए देखो प्लस प्लस है ये माइनस है तो यही लग रहा है यार मेरे को तो स्किप क्योंकि इसमें रिलेशन स्टेब्लिश नहीं हो रहा आपका जो आंसर आएगा ना एक तो आएगा प्लस में एक आ जाएगा आपका माइनस में दोनों आपके आंसर फिट नहीं बैठेंगे इसमें यस तो किसी ने आंसर निकला सी कॉफी यस वेरी गुड नाइस नाइस यही मैं देख रहा था कि कौन यहाँ पे अपना ब्रेन लगाता है सम क्वेश्चंस वेयर जस्ट क्वेश्चन देख के आपको लग जाएगा कि दोनों के रूट्स नेगेटिव होंगे और एक का रहेगा प्लस के अंदर सो इट इज नॉट गोइंग टू मैच अगेन वी आर हैविंग हाई लेवल ओवर हियर एक्स 3/2 एक्स ऊपर है -3/2 -3/2 इसमें एक्स तो आ जाएगा कॉमन आ जाएगा ना
ये वाला एक्स तो यहाँ आ जाएगा ना, एक्स 3/2 कॉमन हो गया, 16x - 63 आ गया, तो ये वाला ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे x1/2 है, तो x3/2 हो जाएगा। तो इसको आप बेस ले लो, तो ये जो आपकी है पावर ये ऐड हो जाएगी, तो नीचे हो जाएगा 4 एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा एक्स का स्क्वायर -16x + 63। एक इक्वेशन तो ये बन गई। ऐसे आपकी जो दूसरी इक्वेशन है वो बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करें। दिस क्वेश्चन विल टेक मोर देन 1 मिनट। मेरे हिसाब से ये जो क्वेश्चन है इट विल टेक मोर देन 1 मिनट, बट ऐसा नहीं है कि इस नहीं होगा सॉल्व, इट विल बी सॉल्व। देखते किसने सॉल्व किया यहाँ पे। एक्स की वैल्यू -405, ये ऑप्शन आया प्रभजोत का। यस, वेरी गुड, नाइस माय फ्रेंड, वेरी वेरी गुड। So now you're going to solve the value that you are going to get over here. This is the value. इन्होंने आंसर निकाले, वेरी गुड प्रभजोत, आई रियली अप्रिशिएट। जिसका ए आया है और किसी का आंसर आया था, शुभम का है, वेरी गुड शुभम। देखो आपका बहुत अच्छा प्रिपरेशन, वेरी हाई चांसेस दैट यू गाइस आर गोइंग टू क्लियर द एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हर कोई सॉल्व करेगा इसमें कोई ये नहीं कहेगा ये नहीं होगा, दिस एवरीवन विल सॉल्व। ठीक है, इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ये हो जाएगा आपसे। इसमें देखो 1 मिनट से कम लगेगा आपको, अगर 1 मिनट ले रहे हो आप तो थोड़ा सा स्पीड पे काम करना पड़ेगा। टाइम इज अप, लेट्स सी हु हैव गिवन द आंसर। ई ई ई ई कैसे आ रहा है कुणाल? ई एंड डी नो रिलेशन, ओके, नो रिलेशन आपने निकाला है, तो एक्स के और वाई की वैल्यू आपने क्या निकाली है, ये साइन मेथड, टू। ठीक है, तो 5/2 एक वैल्यू है यहाँ पे, और यहाँ पे 6। ठीक है, नो रिलेशन, नो रिलेशन आपका आंसर आ रहा है। ओके, विच इज गुड, सो द राइट आंसर गिवन बाय वी स्टूडेंट फर्स्ट, द डीवी दिस टाइम सेकंड अटेम्प्ट, लास्ट ईयर गिव द इंटरव्यू बट फाइनल। ओके ओके, रोमित, आई विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। इस बार अच्छे से मेहनत करना, आई होप इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए दोस्त। बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार, जब एक जॉब लग जाती है तो मतलब एक माइंड रिलैक्स हो जाता है, लाइफ सिक्योर हो जाती है, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो लास्ट में आंसर दिया है भावना। ओके, शुभम का भी आंसर आ गया, नाइस। द स्टूडेंट हु हैव गिवन द ई, नाइस स्टूडेंट्स, वेरी गुड, मूविंग अहेड। तो ये क्वेश्चन सॉल्व, मैच द फॉलोइंग, दिस इज लिटिल बिट ट्रिकी। So you need to find the value of x and y and z. Then it is going to ask what is the value of x, what is the value of y, what is the value of c. Then you need to match the following. So I will give you 1 minute. ऐसा नहीं है कि नहीं होगा सॉल्व, हो जाएगा solve। इसमें देखो x a की वैल्यू निकाल लोगे ना, तो आप आराम से उसको मैच द फॉलोइंग से कर लोगे। बस a की वैल्यू निकालनी है आपको। एक और ऑप्शन है क्या इसमें? ऑप्शन यहाँ पे एक और है। तो a का देखो b आ रहा है, मेरे हिसाब से a का b आ रहा है, a का b, 2 का a, ये हो सकता है। यस, यू आर राइट, लेट्स सी व्हाट यू गाइस, सॉरी आई वाज राइट। So the first answer given by Romit, very good Romit, Kunal, Shubham, Yuvraj, with Jaden, Prabhojot, Solanki,
वेरी गुड। सो यू गाइस हैव गिवन द आंसर विद इन 40 सेकंड। बहुत बढ़िया, 40 सेकंड में आपने आंसर दे दिया। इट इज गुड। नेक्स्ट, द लास्ट क्वेश्चन। ये देखते ही हो जाना चाहिए सॉल्व। तो सम क्वेश्चंस टेक लेस टाइम, ऐसा नहीं है कि कुछ ज्यादा टाइम लगे। सम क्वेश्चंस टेक लेस टाइम। तो ए आंसर है। ए किसका आ रहा है सबसे पहले, किसका है? रोमित, वेरी गुड रोमित। प्रभुजोत, शुभम, रोमित, कुणाल, युवराज, सत्यम का भी आंसर है। नाइस सत्यम, गुड। So the student who have given the A, nice guys. Okay. So again we are having the DI. So you will solve or skip what you guys say. मेरे हिसाब से I will skip what you will say because my main motive is to attempt maximum question in less time. तो मैं skip करूंगा, आप क्या करोगे? यस, इट इज लिटिल बिट कैलकुलेटिव। ठीक है, देखो जो आप डीआई देखो ना उसके साथ एक अंदाजा लगा लेना कि यार ये डीआई थोड़ा सा मुझे हार्ड लग रहा है, ऐसे करके। ठीक है, तो आई विल स्किप। तो यहाँ पे क्वेश्चन कौन सा था? ये 16 से था। तो डीआई का एक 6 था, और एक डीआई का 16 था। ये वाह, ये मेरे फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं, इसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है सॉल्व करना। तो आई वांट यू टू सॉल्व एज फास्ट एज यू कैन। थोड़ा सा ध्यान से करना। मैं भी सॉल्व करूँ क्या इसको? ठीक है, मैं आपके सामने सॉल्व करता हूँ। पेन एंड पेपर पे क्या थोड़ा स्पीड हो जाता है, यहाँ पे क्या थोड़ा स्लो हो जाता है। 1617 है, 617 है, और 61 है, और 6 है, और 6 है। अच्छा, 12 2 हो गया ना? 7 7 14 21 6। 2298 आ रहा है मेरा तो यार। इसके आसपास का कौन सा नंबर है? ये आ रहा है। मेरे से तो पहले किसी ने निकाला। अरे क्या बात है, तुम्हारा आंसर भी आ गया। नाइस गाइस, नाइस। So the first answer given by Shubham, nice Shubham. Then followed by Rohit, भावना, ज्योत, कृष्ण, जेडन, कुणाल, युवराज, सत्यम का भी आंसर है। नाइस सत्यम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर मुझसे बाय मिस्टेक टिक हो गया है। तो बाय मिस्टेक आई हैव टिक, बट आई वांट यू टू सॉल्व। ठीक है, आप अपने अनुसार से सॉल्व करो। ठीक है, आई विल वेट फॉर यू गाइस, जस्ट सॉल्व। देखो ये 22 डिवाइड बाई 2 है, ये आपका 11 हो जाएगा। ये आपका 33 है, तो 11/3 ये आपका हो जाएगा 3। ऑफ मतलब मल्टीप्लाइड, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3, 12। 5 स्क्वायर 25 प्लस 12, 37। 37, 260 डिवाइड बाय 37, देन -64, प्लस हो जाएगा 65, ये हो जाएगा 65 और 12, 72। ठीक है, आपका आंसर आ गया होगा। 65 + 7, 72। ठीक है, मूविंग अहेड। नाउ सॉल्व द क्वेश्चन। आई विल गिव 1 मिनट टू सॉल्व द क्वेश्चन।
आई होप आंसर आ गया होगा। लेट्स सी व्हाट यू गाइस हैव गेट हियर। कुणाल सी ई और शुभम 44, शुभम ना 44 कह रहा है शुभम। शुभम पे मुझे ज्यादा भरोसा है। तो दिस आंसर ओवर हियर। तो जिसने स्टूडेंट्स ने आंसर निकाल लिया, गुड। जिसका नहीं निकला, यू कैन चेक ओवर हियर। द आंसर इज 44। ओके, मूविंग ahead to the next question. Again, 1 minute to you guys. 600 divided by 15. 20. 20. 20 plus 13 into 14. 169 plus 10. 550। 550 के लगभग आंसर आ रहा है। माई आंसर इज 550 नियर बाय। टू 553 इज नियर बाय। तो लेट्स सी किसका आंसर आया है। 553 बी ऑप्शन। जॉर्डन का थोड़ा सा रॉन्ग है आपका। कुणाल गुड। प्रज्योत, भावना, राजेश गुड। शुभम का भी आंसर नाइस। So I have solved this question without pen and paper. Some questions we can solve. Okay. Last question of the approximation. देखो, आपके इसका आंसर है आपके मार्क्स। तो आपके एग्जाम में कितने आने चाहिए मार्क्स, वो आपको लिखने हैं। ठीक है। द मार्क्स दैट यू वांट टू गेट इन द एग्जाम, दिस इज द आंसर। ठीक है। तो जो आपके एग्जाम में एक्सपेक्ट करो इतने नंबर आ जाए तो मस्त, अच्छा हो जाएगा। तो दिस इज द आंसर। तो आई होप कि लेट्स सी कौन कितना मार्क्स एक्सेप्ट कर रहा है। क्या बात है, 100 फन 100 इज गिवन बाय फर्स्ट। अरे जेडन 553 ऑप्शन में नहीं है दोस्त। 100 राजेश गुड। अच्छा, लास्ट आंसर था 100 भावना गुड। 125। 125 प्रज्योत, तो आप थोड़ा सा गलत नहीं हो गए क्या? 100 है इसका दोस्तों। तो दिस इज द आंसर प्रज्योत। मे बी यू हैव मेड सम मिस्टेक ओवर हियर। एक बार आप आंसर मिलाना है, सो वी नीड टू यूज द फॉर्मूला ओवर हियर, बोर्ड मास। ओके। नाउ दिस इज द कैसलेट डीआई विच आई यूजुअली हेट। मुझे अच्छा नहीं लगती कैसलेट डीआई। तो आई हैव नो आइडिया व्हाट यू गाइस से। स्किप और सॉल्व करें। आई यूजुअली स्किप। आई डोंट लाइक यू कैसलेट डीआई, आई हेट। बिकॉज इसमें क्या होता है, थोड़ा रिस्की रहता है ये। ओके, स्किप स्किप जो नाइस जो। ओके, तो आई विल आल्सो स्किप। तो इसको ये यहाँ पे लिख लेते हैं। क्वेश्चन 26 था, 26 सी डी आई। ठीक है।
ये डीआई मेरी अच्छी डीआई, सो दिस डीआई आई विल सॉल्व। बट मेरे को ऐसा लग गया कि बट व्हाट यू विल से, आपको बताना सॉल्व करोगे स्किप करोगे। एक डीएम स्किप हो चुकी है। देखो आपको, व्हाट यू गाइस से, मैं इसको आए, अगर मैं देता पेपर तो मैं इसको सॉल्व करता, क्योंकि मेरे को लग गया कि यार हाँ हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो शुभम ने कह दिया, युवराज ने भी बोल दिया है, ठीक है इसको अपन आगे करते हैं, बट डीआई में ये डीआई मुझे इजी लगी, तो मैं डीआई में इसको ऊपर लिख दूंगा, क्वेश्चन 31 को, क्योंकि मैं इसको सॉल्व करूंगा पहले। तो अभी के लिए स्किप कर लेते हैं। डी अर्थमेटिक, अर्थमेटिक को आखिरी में करें, स्किप। ये आई यूजुअली एक बार अपन देख लेते हैं ना, आगे तक देख लेते हैं। तो अर्थमेटिक एक शायद कितने क्वेश्चन है, क्वेश्चन 36 से अर्थमेटिक है, एक बार देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये क्वेश्चन बहुत बेकार होते हैं, आई यूजुअली डोंट लाइक दिस क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, डेटा इनसफिशिएंट वाले। अगेन अर्थमेटिक, इन अर्थमेटिक, तो यहाँ पे आपका अर्थमेटिक हो जाता है पूरा, ठीक है। तो अभी सबसे पहले डीआई सॉल्व करें या अर्थमेटिक, डीआई या अर्थमेटिक, व्हाट यू गाइस आर सेइंग दैट ओवर हियर, डीआई करें अर्थमेटिक करें, और अर्थ। तो तीन तीन डीआई आ गए, आ, दो अर्थमेटिक, तीन अर्थमेटिक, चार डीआई, चार अर्थमेटिक। क्या बात है, एक और वोट चाहिए अपन को, नहीं प्रज्योत एक बार ही देना है। पांच डीआई हो गए, तो 5:4, मोर वोट्स आर टुवर्ड डीआई, अर्थमेटिक कोई है, इक्वल हो जाएगा। मैं नहीं आप ऑलरेडी दे चुके हैं वोट। दिस इज नॉट दैट गवर्नमेंट, अभी जैसे मीम आ रहा है ना, एक ही बंदा तीन तीन जगह वोट दे रहा है, आई डोंट वांट टू से दैट, बट आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि अभी कुछ आ रहा है ना कि एक ही इंसान है, उसका अलग अलग वोटर लिस्ट में नाम आ रहा है, तो ऐसा नहीं करना है। वी डोंट वांट टू पुट द सेम नेम ओवर हियर। सो लेट्स सॉल्व द डीआई फर्स्ट, के बाद अपन देख लेते हैं, ठीक है, वी आर गोइंग टू सॉल्व। तो फर्स्ट क्वेश्चन 31 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, आई होप इट इज विजिबल, नहीं है तो थोड़ा इसको मैं स्क्रॉल इस साइड में कर देता हूँ, अब आपको ये विजिबल होगा, ठीक है। तो जस्ट टेक योर टाइम, आई विल गिव 2 मिनट्स और 3 मिनट्स ले लेते हैं इसको, तो सॉल्व द क्वेश्चन।
ठीक है, हो गया होगा आपका सॉल्व। तो इजी था, ऐसा कुछ नहीं था कि इसमें इट इज नॉट डूएबल इन 4 मिनट्स। लेट सपोज 1 मिनट एक्स्ट्रा ले लो, 4 मिनट में हम 5 क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है दोस्तों? ABCDE, या 8:10, 7:10? व्हाट इज योर आंसर माय फ्रेंड? 9:10 आ रहा है। व्हाट यू गाइस सेड? देखो इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है। इफ यू वांट आई कैन आल्सो एक्सप्लेन टू यू। मैं एक बार आपको बता देता हूँ हल्का सा। मे बी आपसे आपसे सॉल्व हो गया होगा, ऐसा नहीं है कि आपसे नहीं हुआ होगा। मे बी आपसे कुछ मिस्टेक हो गया होगा, मैं एक बार आप हल्का सा बता देता हूँ। देखो दो अप्रोच है। एक तो होता है रेशियो बेस, ठीक है, या तो होता है कि आप रेशियो जो है उस पर आप सॉल्व कर लो। एक होता है परसेंटेज बेस, ठीक है। सो मैं आपको बता दूं दोनों। इसने बोला कि यार जो सैमसंग का मोबाइल है वो ज्यादा है आईफोन से, ठीक है, आईफोन ज्यादा है। अब इसने मान लो कि जो सैमसंग का मोबाइल है, लेट सपोज आपको यहाँ पे देखा है 25%। इसका मतलब 1/4 हम बोल सकते हैं कि कोई आपका मान लो जो नंबर है 4 है, उसका ये हल्का से ज्यादा है, इसको हम बोल सकते हैं 5/4। लेट सपोज द टोटल नंबर वी आर हैविंग 4, ठीक है। जो टोटल नंबर है वो 4 है। तो जो आईफोन आईफोन की अगर वैल्यू 4 है तो जो सैमसंग की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी आपकी 5 हो जाएगी। तो मतलब जो टोटल नंबर है वो अपने पास है 9। तो अगर आपके पास में टोटल नंबर 9 है और 9 की वैल्यू 1620 है, तो इसको आप 9 से आप वो कर लो डिवाइड। तो 3 बार हो जाएगा, 5, 10, 15, एक आ जाएगा 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा, इसको वापस आप एक बार कर लो, 3 बार 3, एक बार यहाँ आ जाएगा 2, 3, 8, 16, 24, 180। मतलब एक जो रेशियो है 1:1 = 180। तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी है? इसको आपको कुछ नहीं करना, इसको आधा कर लो, 900, 700। तो जो नहीं नहीं, हो जाएगा ना, 900 हो जाएगा। 18 का आधा 900, और ये कितना है 4, 0, 8, 16, 24, 32, 2, 3, 4 एकम 4, 5 6। तो ये आपका आंसर आया, ठीक है। सो दिस इज द रेशियो बेस्ड मेथड। So you can solve with the ratio based method, or you can solve with the percentage based method also. So what the percentage based method said, ये कहता है कि कोई भी वैल्यू है उसका 100% उसका ओरिजिनल वैल्यू। इसने बोला कि जो सैमसंग है इट इज मोर 25% मोर। इसका मतलब या लेट सपोज आईफोन की वैल्यू भी 100 है और सैमसंग की 100। इसने कहा सैमसंग इज 25% मोर। इट मीन सैमसंग इज 25% मोर देन ऑफ दिस। सैमसंग इज 125% ऑफ 100% ऑफ आईफोन। तो द टोटल वी आर हैविंग 225%। तो 225 रिप्रेजेंट 1620। तो 1% इज इक्वल टू 7.2, आई एम सॉरी 72। तो इससे आप निकाल लेना, 1 की वैल्यू आपके आ जाएगी 72, ठीक है। सॉरी 7.2 आएगी। लाइक दिस यू कैन सॉल्व। तो दो मेथड है आपके, रेशियो बेस मेथड यू कैन ऑल्सो सॉल्व, और रेशियो। अब बट आई यूजली लाइक रेशियो। मतलब जब आई यूज टू गिव द एग्जामिनेशन, आई स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती थी बट आई यूज टू फॉलो रेशियो मेथड। तो रेशियो में क्या करता था, इसको हम करते थे डिवाइड। तो ये हो गया 4, ये हो गया 5। तो यहाँ से रेशियो निकल गया 4:5। तो 4 रेशो, नहीं 5:4। तो द टोटल वैल्यू इज 9। तो 9 रेशियो इज रिप्रेजेंट टू 1620। लाइक दिस यू कैन सॉल्व बोथ मेथड आर अवेलेबल, ठीक है। दोनों से आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा 9:10, ठीक है। आ गया ना, 9:10, युवराज वेरी गुड, ठीक है। तो इसका आप आंसर निकाल लेना। दिस इज द कंप्लीट आंसर विच इज गिवन ओवर हियर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इफ योर आंसर मैच टू दिस, अगर आपका आंसर इससे मैच कर रहा है, इट मीन्स यू कैन सॉल्व ऑल 5 क्वेश्चंस ऑफ द डीआई, ठीक है। तो आपके जो डीआई के जो 5 क्वेश्चन है वो कंप्लीट आपसे सॉल्व हो जाएंगे। देयर इज नथिंग मोर। इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। सो ऑल 5 मेथड, आई एम सॉरी 5 क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व ऑफ द डीआई। ओके, लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट डीआई। नेक्स्ट डीआई थी क्वेश्चन 6 पे। दिस इज द डीआई वी आर हैविंग ओवर हियर।
एंड दीज आर द टू चार्ट्स ओवर हियर। अपने पास में दो है चार्ट, एक चार्ट तो ये रहा और दूसरा चार्ट ये वाला। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है एंड दिस इज द हाई लेवल। तो दिस इज द अर्थमेटिक डीआई। ये कौन सी डीआई? अर्थमेटिक। सो द स्टूडेंट्स हु लाइक अर्थमेटिक, नाउ वी आर हैविंग अर्थमेटिक डीआई फॉर यू। आई विल गिव यू बोथ, दैट आपको एक जगह ही आंसर दिख जाए। तो 3 मिनट का स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पे टाइमर। क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। द स्टूडेंट हु आर सेइंग हमें अर्थमेटिक अर्थमेटिक चाहिए, तो अर्थमेटिक डीआई आ गया आपके पास में। इफ यू वांट आई कैन आल्सो सॉल्व द क्वेश्चन फॉर यू। रीडर बोट का डिस्टेंस वाली अर्थमेटिक डीआई है। तो जिस स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, द स्टूडेंट हु सॉल्व दिस क्वेश्चन, बात मेरी मान लेना, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। द स्टूडेंट हु इज एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम ओवर हियर, मेरी बात मान लेना, योर प्रिपरेशन इज ऑन गुड लेवल। ठीक है। तो अगर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है तो मेरे को बताना, देन आई विल गिव यू वन क्वेश्चन टू सॉल्व। 9 सेकंड मोर। टाइम इज अप। आई होप यू हैव सॉल्व द क्वेश्चन। इसका आंसर बता दो। फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा? फर्स्ट क्वेश्चन।
Along with the current कहा है इन्होंने, so you need to add the speed of current or water also. So let's see what you as A as same as Shubham. Shubham की तरह copy कर दिया. Very good Shubham. So this is the answer given by Shubham. And the speed of boat in the still water on Monday, it is 27, and the speed of the boat along with the Wednesday, it is 64. Moving ahead to the next question. तो फ्राइडे इसका भी हम निकाल लेना, इसका भी आंसर दिखा देता हूँ. दिस इज द आंसर फॉर द फ्राइडे. इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द आंसर. एंड on which day the time taken to travel along with the stream is the second highest. सेकंड हाईएस्ट पूछ रहे हैं तो आप जब सारे निकाल लोगे ये आपके आंसर आएंगे. तो इट विल, जिसने सॉल्व नहीं हुआ है, द स्टूडेंट हु इज अनेबल टू सॉल्व, दिस इज द आंसर फॉर ऑल क्वेश्चंस दैट वी हैव सीन फॉर द करंट डीआई. तो along with the DI भी निकाल लोगे. तो the Saturday time taken travel along with the stream is the second highest. तो जिन स्टूडेंट का क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, वेरी वेरी गुड. इट मीन्स योर प्रिपरेशन इज अप टू द लेवल. तो जिन स्टूडेंट ने DA Hello, सॉल्व, Gajendra sir. Sorry to interrupt you. Can you please provide me your contact number? I want to discuss something with you on WhatsApp or something. सॉरी. ओके, मूविंग अहेड. Hello. Next, we are having the DI of question 16. So we are having the 16 DI over here. Again, I will give you 3 minutes to solve the question. So if you want me to explain to any question that you are unable to solve, I will solve it for you. I hope this question is clearly visible to you, and this question you can solve. In the last question we have seen the arithmetic question, but here it is completely, we can say, calculation based. भी आता हूँ, ठीक है. Hello, Gajendra sir. Hello. Hello. Am I audible?
ओके, तो आई होप कुछ आपका सॉल्व हो गया होगा क्वेश्चन। तो जस्ट गिव मी अ मोमेंट ओवर हियर। देखो, 3 मिनट बहुत होते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ऐसा कुछ नहीं है। यू डोंट नीड टू सॉल्व कंप्लीट क्वेश्चन। इसका आंसर बता दो, जस्ट गिव मी द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय द शॉपकीपर ए ओवर द स्पैन ऑफ 3 years फ्रॉम 2020 टू 2022? 2020 का ग्राफ देख लो, 2022 का ग्राफ देख लो, बेस में 2020 को रख लेना। तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय ए कितना है? ये रहा 140। 140 डायरेक्ट नहीं, एवरेज नंबर है ए और बी का। तो बी, एवरेज नंबर ऑफ बी और सी। अच्छा, तीनों को सॉल्व करना पड़ेगा, विल टेक सम टाइम। 400 के तो ऊपर आ रहा है। ए बी सी, ए बी 70, 34, 440, 450। ठीक है, 440 या 450 के आसपास आंसर आना चाहिए। आई हैवेंट सॉल्व द क्वेश्चन, आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। ओके, 450, 450, 450, वेरी गुड शारदा। द फर्स्ट आंसर गिवन बाय सत्यम, वेरी गुड सत्यम। प्रभजोत, राजेश, शारदा, शुभम ने क्या बात है, वेरी गुड शुभम। दीपक का भी आंसर आ गया, वेरी गुड दीपक, आई अप्रिशिएट, नाइस। तो आई होप आपका आंसर, आपने आंसर कौन सा बताया? 450 बताया था ना? यस। तो दिस इज आंसर। तो द स्टूडेंट हु आर अनेबल टू सॉल्व, जिनका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, तो दिस इज अ स्क्रीनशॉट। इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, you can solve the question later on. Okay, so moving ahead to the next DI that we have left. So the next DI we have left at question 26, कैशलेट DI। क्वेश्चन 26 पे अपना कैशलेट DI है, क्वेश्चन 26 कैशलेट DI। नहीं 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 नहीं। ओके, सो यू नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन ओवर हियर। ठीक है, अपने यहाँ पे वोवन व्हील से कि हम स्किप करेंगे। लेट सपोज यू हैव द टाइम, लेट सपोज आप आपको एग्जाम में इतना ही मिलेगा टाइम। लेट सपोज यू हैव द टाइम एक्स्ट्रा 3 मिनट्स, जस्ट सॉल्व द क्वेश्चन। अपनी ओर से ट्राई करो क्वेश्चन सॉल्व करने का, होता है तो ठीक है, विद इन 3 मिनट, नहीं होता तो कोई बात नहीं, बस ट्राई करो आप। आई नो यू विल स्किप, जस्ट ट्राई माई फ्रेंड। जस्ट 3 मिनट, 3 मिनट दे दो इसको। आप 3 मिनट में इंस्टाग्राम रील्स देखोगे, यूट्यूब रील्स देखोगे, उससे अच्छा है 3 मिनट इसको ट्राई करके देख लो, होता है तो ठीक, नहीं होता तो स्किप कर दे।
ठीक है। तो जिनसे सॉल्व हो गया है वेरी गुड, जिनसे नहीं हुआ है नो प्रॉब्लम, वी विल सी द आंसर। तो लेटर ऑन जब भी आपको टाइम मिले देख लेना। आई विल वेट 30 सेकंड मोर। जिसका सॉल्व हो गया है क्वेश्चन वन का आंसर दे दो। तो लेट्स सी किसी का आंसर आया है। ओके, सो ओवर हियर वी आर हैविंग सॉल्व हो गया सॉल्व, बट दिस इज आंसर। ठीक है। तो हो जाता है कभी कभी, सॉल्व हो जाता है, तो हमें लगता है कि नहीं होगा, हो जाता है कभी कभी। किसी का आया तो नहीं ना, किसी का 1200 लेंदी है, ठीक है। तो जिसका सॉल्व हो गया है, सो ही कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट। ओके, सो मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी हैव लेफ्ट विद द अर्थमेटिक। तो अर्थमेटिक अपना कहाँ एंड हो रहा था? 31 से स्टार्ट था ना? यहाँ से स्टार्ट था, ठीक है। तो अर्थमेटिक स्टार्ट हो गया। द स्टूडेंट हु लाइक अर्थमेटिक, आपके पास अर्थमेटिक आ गया है। तो 1 मिनट का स्टार्ट कर लेते हैं टाइमर। तो लेट मी नो द आंसर। ठीक है। सो किसी का आंसर आया बी, 31 क्या बात है। सर सॉल्यूशन दिखा दो पूरा एकदम। इसका सॉल्यूशन श्रेयांश इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो? इसका तो दिखा दिया था ना। तो इसका 31 है, इसमें कुछ देख नहीं। लीजिए एक बार। ओके, कैशलेट डीआई। सही है सर। क्वेश्चन 26 कैशलेट डीआई। सो दिस इज द इक्वेशन वन। आप स्क्रीनशॉट लेते जाओ ना, बाद में देख लेंगे, ठीक सर है। स्क्रीनशॉट टू, स्क्रीनशॉट थ्री, स्क्रीनशॉट फोर,
and this is the final screenshot. Screenshot 5. Okay. तो वी वर एट क्वेश्चन 36. आपका आंसर आ गया था, तो इसमें कुछ नहीं करना है, तो एवरेज निकालना था। ठीक है, तो इसमें आई होप किसी ने मिस्टेक नहीं की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा सॉल्व। अभी आंसर नहीं आया क्या? 4125। लेट्स सी किसी का आंसर है 4125। बी ऑप्शन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। प्रभुजोत, शारदा गुड। शारदा का थोड़ा ओके। सो दो स्टूडेंट हु आर unable to solve, this is the question, and this is the right answer for this question. Okay, moving ahead to the next. प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है। आई डोंट लाइक दिस क्वेश्चन, मेरे को अच्छे लगते हैं ये, क्योंकि मेरा ये वीक है प्रोबेबिलिटी वाला थोड़ा सा। There are 10 males, 8 female in the company, 3 random one chosen. तो 18, 3 by 18, the difference of the probability of 2 male and 1 female against, नहीं होगा सॉल्व। आई डोंट लाइक प्रोबेबिलिटी, आई यूजुअली स्किप इट। एक मिनट बहुत है इसके लिए। टू मेल सेलेक्ट के लिए क्या हो गया? 2C2, 2 हो गया। 2 डिवाइडेड बाय 18 एंड माइनस 1 मेल 2 फीमेल, तो 1 by 18 एंड प्लस 2 by 17 ऐड करना पड़ेगा। 1 by 18, 1 by 17 by 18। मैं स्किप ही करूंगा इसके यार, ये तो बहुत टाइम ले रहा है। किसी ने सॉल्व किया है इसको? नोबडी सॉल्व। ओके, सो एक बार आंसर देख लेते हैं इसका। तो द आंसर ओवर हियर इट इज 10 by 102। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सॉल्व हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं है, इजी है। इसमें नो वन विल से कि नहीं होगा, 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। दिस यू कैन सॉल्व विद इन 1 मिनट। ठीक है, सो 10, 10, 20 और ये कितना हो जाएगा? 12, 12, 24। 4% इज इक्वल टू 600। तो 1
परसेंट 4 divided by 60. 15. So 150 rupees. So one percentage is equal to 150 rupees. But clause over here is Sinchan and Rahul. 1 percentage is equal to this. 2x 150. Oh, so yes. Some invested by विदाउट पेन एंड पेपर देख रहा हूँ। तो एक का आ गया 150, एक परसेंटेज का, तो 100 का कितना आ गया 15K। ठीक है, तो 100 का 15K आ रहा है 15,000। तो x प्लस x प्लस 1200, तो 15K इज इक्वल टू 2x प्लस 1200, तो 15 माइनस 1200, 14,008। राउंड फिगर तो नहीं आएगा इसका ना, राउंड फिगर नहीं आएगा, तो 6,000 नहीं आएगा, 8,000 नहीं आएगा, 65 नहीं आएगा, तो आंसर आपका इन दोनों में से एक आएगा। तो आई ट्राइड टू सॉल्व विदाउट पेन एंड पेपर बट आई एम अनेबल टू सॉल्व, बट आई हैव कंक्लूडेड इन दोनों में से आपका आंसर आएगा। तो आपका क्या आ रहा है 7,800। ठीक है, 7,800 लगा लेते हैं। देखो राउंड फिगर तो नहीं आ रहा था इसका, तो इजी था, ऐसा ऐसा कुछ नहीं था इसमें, सिंपल इंटरेस्ट निकालना था। तो x प्लस एक्स प्लस 2, ठीक है, दोनों की वैल्यू रख दी थी, पुट कर दी थी, तो x की वैल्यू आ गई 7,800। यस, ओके, सो मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सॉल्व हो जाएगा। अगेन 1 मिनट टू यू गाइस, 1 मिनट बहुत होता है क्वेश्चन अर्थमेटिक वाले के लिए। आई ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन विदाउट पेन पेपर, लिख सकते एक्स आर शब्द इन तीनों का ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे ना, तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा ना एलसीएम, ये हो जाएगा 5। सॉल्व करता हूँ, पेन कहाँ गया, ये देख लेता हूँ। 8 एलसीएम हो गया, 4 9 12, 12 हो गया। If Radha and Suman work for 4 days, राधा और ये दोनों 8 वर्क किया 4 2, ठीक, कितना बच गया 28, 28 बच गया। एंड द वर्क फॉर सम डेज कौन है, only 4 and 3 days before completion of the work handle तो राधा एंड सुमन, तो राधा और जो सुमन है इसने अगेन 3 दिन काम किया, राधा और सुमन किया 12, 8 था ना, 8 ने वापस 3 दिन काम किया, तो कितना हो गया 12 हो गया ना, 8 16 24 ही हो गया, तो 24 निकाल लो, तो ये बच गया 4। एक्स की वैल्यू 1 आ रही है, ये मेरा भी आंसर आ गया। सो लेट्स सी आपका आंसर आया नहीं आया, तो आई ट्राइड टू सॉल्व इन द लास्ट मोमेंट। यस, मैं भी आंसर लिख लेता हूँ मेरा 1। ठीक है, सो द फर्स्ट आंसर गिवन बाय प्रभुजोत, वेरी गुड, नाइस। राजेश गुड, बैंकिंग वाली गुड, श्रेयांश, युवराज, भावना, यू आई ऑल्सो गुड, नाइस टू गाइस। अच्छा लगा आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया, मैंने भी सॉल्व किया। ओके, सो now we are having another question over here. The question given below three statement 1 2 3 determine
ठीक है, हो जाएगा सॉल्व, ऐसा नहीं है नहीं होगा, हो जाएगा। तो आई ट्राई टू सॉल्व विथ विदाउट पेन एंड पेपर, लेट सपोज आई कैन सॉल्व और नॉट। और एक बार आप भी ट्राई करो, आई विल गिव यू 1 मिनट, मैं भी कोशिश करता हूँ। You sold a car to Kush at what is the selling price of the car to Kush if you sold at the 12% profit? ये ऐसे नहीं निकलेगा। तो मेरे को सीपी और एसपी दोनों की रिक्वायरमेंट रहेगा। द मार्केट प्राइस 15% ऑफर है डिस्काउंट, ये नहीं, तो मार्केट प्राइस और डिस्काउंट अलग चीज है, तो विदाउट सीपी नहीं निकल पाएगा। द अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट गेन बाय द यश व्हेन ही सोल्ड द कार इज 100 रुपीज, तो 12% इज इक्वल टू 100 रुपीज। तो इससे मेरा क्या निकलेगा, सीपी और एसपी का रेशियो निकलेगा, बट सीपी और एसपी की वैल्यू अभी भी नहीं निकली। सर रेशियो ऑफ द ऑफर्ड अमाउंट सोल्ड फॉर इज 13 है, ठीक है। तो दूसरा और तीसरे से आ सकता है मेरा ना, मेरे हिसाब से दूसरा और तीसरा होना चाहिए, से भी निकल जाएगा आंसर, बट 12% है ना, 1 और 3 भी है। देखो 1 2 15% डिस्काउंट दिया है, 1 तो रिक्वायर्ड है, नहीं डिस्काउंट और मार्क, हाँ ये भी निकालना पड़ेगा, मार्क भी निकालना पड़ेगा यार, है इसको। दो स्टेटमेंट तो चाहिए चाहिए, यस आई वॉज राइट, ठीक है। सो मेरा आंसर राइट है, दूसरा तीसरा रिक्वायर्ड था, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, तो दिस वाज द राइट आंसर। सो लेट्स सपोज किसी का आंसर है डी, और डी का है, डी किसने का है, डी का शेयर ने, वेरी गुड। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हो जाएगा सॉल्व विदाउट पेन एंड पेपर एट राइट, इफ गिवन। both statement are not sufficient to the answer, ये हो जाएगा सॉल्व ना। व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर, सम अगर 7 है डिजिट का, तो 7 होने के लिए दो ही केस बनते हैं, 1 या 6, या 7 है, 1 और 6 नहीं, 8 और 1, 8 और 1 में 7 बन रहा है, 9 और 2 में बन रहा है, और 6, द डिफरेंस बिटवीन डिजिट इज 3, 3 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, तो सम 7 कैसे है? ठीक है, 1 के साथ लेना पड़ेगा ना अपन को। आपका क्या आंसर आ रहा है, तो ये 1 के साथ लेना पड़ेगा, 1 और 2, देखो तीसरा तो रॉन्ग कर रहा है, तीसरा स्टेटमेंट तो मुझे रॉन्ग लग रहा है यहाँ पे ना। व्हाट यू गाइस सेड, यू सेड ए, क्या बात है, आप और मैं दोनों गलत है। ओके, वी बोथ आर इनकरेक्ट, ओके। सो किसी ने और आंसर दिया है, श्रद्धा ने कहा है सी, ओके। श्रद्धा का सही था, अपन दोनों ही गलत है, ठीक है। मूविंग अहेड, ये क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व, आई लाइक एजिस क्वेश्चन, एजिस क्वेश्चन मुझे अच्छे लगते हैं। ठीक है, आ जाएगा, इससे आंसर आ जाएगा, तो बाय यूजिंग 1 2 3 आ जाएगा आंसर।
मेरा तो आंसर आ गया। इन माय ओपिनियन ऑल आर रिक्वायर्ड। मेरे हिसाब से ना ऑल रिक्वायर्ड है। देख लेते हैं एक बार। ये आंसर है मेरे हिसाब से। नॉट सफिशिएंट टू आंसर। कैसे? विजय और गिरीश का था ना यार, क्यों नहीं आएगा आंसर? देखो, ये जो आंसर है इसको मैं इंटू इंटू करूंगा, 8 16 24 आ जाएगा। इस 2 3 4 आ रहा है, और इसका जो सम है 37 × 5 है, 185 है। टोटल एवरेज एज ये है। एवरेज को अगर मल्टीप्लाइड किया तो ये 2 3 4 ये ऊपर कैसे चला गया? 5 मेंबर है ना, मिताली। अरे यार, आई मेड ए मिस्टेक, शिट। आई थॉट ये रिमेनिंग कैंडिडेट की बात कर रहा है। स्टेटमेंट 3 आई थॉट इट इज टॉकिंग अबाउट द रिमेनिंग कैंडिडेट, बट जो गिरीश है विच इज रिमेनिंग। बट यहाँ पे इसने विजय लिया है, मनाली ले गया, गिरीश लिया है। देखो मनाली आ गई, रवि रवि आता। अगर यहाँ पे लिखा रवि होता, इफ सी इफ इन द स्टेटमेंट 3 इंस्टेड ऑफ विजय इफ दे हैव मेंशन द रवि, अगर रवि मेंशन होता तो अपना आंसर आ जाता। ओ शिट यार, स्टेटमेंट इनकरेक्ट पढ़ लिया और गलती कर दी। सी आई डोंट वांट यू टू डू द सेम मिस्टेक, सो इन द एग्जाम लिटिल बिट केयरफुल यू नीड टू बी। रवि के एज नहीं, यस संकेत वेरी गुड राइस। राठी का कुछ नहीं, उसमें देखो इसकी आवश्यकता नहीं है इन दिस क्वेश्चन। अगर यहाँ विजय की जगह रवि हो जाता देन वी वर गुड टू गो। यस शुभम, आई एग्री। और शारदा, ओके, थैंक्स अंकित, नाइस ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है क्वेश्चन ये दिया? कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, 3 ईयर का। तो एक्स प्लस 1 पॉइंट एक्स, पॉइंट एक्स 2x 2.1x। आई विल स्किप यार, ये स्किप करूंगा मैं ना। ये किसी ने आंसर दिया है इसका? बैंकिंग वॉरियर ने डी दिया, डी लगा के देख लेते हैं। नहीं, यू आर इनकरेक्ट। बैंकिंग वॉरियर, आपने क्वेश्चन मेरा भी गलत करा दिया। ठीक है, सो मूविंग अहेड। बैंकिंग वॉरियर पर ट्रस्ट नहीं करना, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, यस। आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई वांट यू टू सॉल्व द क्वेश्चन। ये हो जाएगा सॉल्व, ऐसा नहीं है नहीं होगा सॉल्व, ये हो जाएगा सॉल्व। प्लेटफॉर्म की लेंथ देखो इंटू 2 है ऑफ एक्स, और 18 सेकंड है, इसको करना है 5/18। टाइम इज अप। लेट्स सपोज एनीवन हैज गिवन एनी आंसर। ए या बी में से आंसर लग रहा है मेरे को, ए या बी में से। लेट्स सी, श्रेया ने एक है, वेरी गुड। एक ही बात मान लेते हैं, ए, वेरी गुड। श्रेयान, वेरी गुड श्रेयान। एनी अदर किसी स्टूडेंट का आंसर है? शारदा, शारदा का आंसर 2 to 5 / 15। द स्टूडेंट हु आर अनेबल टू सॉल्व द क्वेश्चन हियर यू कैन चेक। सो देखो आपके जो प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस है वो ऐड हो जाएगी, सो जो टोटल डिस्टेंस है वो आपकी 2x हो जाएगी। सो 19 × 5/18 से आपकी ट्रेन की स्पीड आ गई, और उससे आपके डिस्टेंस निकल के आ गया। ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कौन सा क्वेश्चन है? इसको मैं स्किप करूंगा। ये ये देख के मुझे लग रहा है ये मेरे मेरे बस की बात नहीं। ऑल्दो हो जाएगा सॉल्व, बट इट विल टेक सम टाइम। ओके, सो व्हाट यू गाइस से कोई है क्या सॉल्व कर रहा है? अच्छा, अभी मेरे साथ ही हो गया। स्क्रीनशॉट लेना है, श्योर श्योर श्योर। एक सेकंड देना। आ गया, ये वाला था। तो स्क्रीनशॉट 1 एंड स्क्रीनशॉट 2। ठीक है, ये सॉल्व हो जाएगा। यस, आई लाइक दिस। दूध में पानी मिलाना बहुत अच्छा लगता है। कहाँ गया दूध वाला पानी? ये वाला स्किप कर रहे हैं अपन, यहाँ पे है। ठीक है, ये तो मैं भी सॉल्व कर लूंगा। तो चलो मैं भी सॉल्व करता हूँ ना। आई लाइक दिस। ठीक है, असल में 330 लीटर है, मिक्सचर है, वाटर इसको। ठीक है, मिल्क और वाटर का रेशियो है। कुछ मिस्टेक, आई जस्ट मेड सम मिस्टेक ओवर हेयर। 20 है, 10 ऐड किया, 5/4 हो गया। ठीक है, तो इक्वेशन आ गई 5y - 4x इक्वल टू 30। एंड आई नो दैट वेसल में जो वाटर था 330 था, मैं 30 और मिला दिया, 360 हो गया। 60 हो गया। दिस वैल्यू इज इक्वल टू 300। कह रहा है मतलब एक का जो डिफरेंस है, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 30 कह रहा है। ये जो 30 है 330 के इक्वल है, कैसे कह रहा है? ये 110 बता रहा है। ये अगर 110 कह रहा है तो गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। भूल गया क्या मैं? ये वाई प्रॉब्लम कर रहा है ना। वाई को एक्स में चेंज कर दूं क्या? वाई को रिप्लेस कर देते हैं ना, सॉरी हाँ। तो ये जो इक्वेशन मेरी निकल के आई थी 5y - 4x 30। तो मुझे पता है कि 330 था टोटल मिल्क ना। 330 को अगर मैं रिप्लेस कर दूं इससे, वाई को लिख सकता हूँ मैं 330 - x। इससे मेरा आंसर आ जाएगा। ए आई एम स्मार्ट। ठीक है, मेरा आंसर आ गया। आपका आंसर क्या है? 180। क्या रहे यार, आप लोग स्मार्ट हो मेरे से काफी ज्यादा। 180, 180, वेरी गुड। द राइट आंसर गिवन बाय सत्यम। शुभम। बैंकिंग वॉरियर का भी आ गया, वेरी गुड। जो युवराज, क्या बात है। शारदा का भी आंसर आ गया, नाइस। यस, आई मेड सम मिस्टेक, आई हैव रियलाइज विच इज इम्पोर्टेंट।
देखो मिस्टेक एवरीवन मेक, आई ऑल्सो इनिशियली मेड द मिस्टेक, इक्वेशन निकाली बट आई फॉरगॉट टू पुट द वैल्यू, वैल्यू निकालना भूल गया मैं। यूनिट से निकाल लेता तो अच्छा रहता, ज़्यादा ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो रेशो वाला जो था मेथड मैंने यहाँ पे अप्लाई नहीं किया, अगर रेशो वाले से ही अप्लाई करता तो ज़्यादा अच्छा आता, क्योंकि देखो 5+4 ये है, और इनिशियली इसने कितने यूनिट दिया था आपको, 330 दिया था, ठीक है। सो ये मेरा रेशो निकल गया था 5/4, और इसमें हमने कितना ऐड किया था, 30 ऐड किया था, तो 30 इसमें ऐड कर देते, ये हो जाता 360। सो 9 रेशो इज इक्वल टू 360। एक रेशो की वैल्यू कितनी है, 40 रेशो है, एक की आपके आगे 40। उसके बाद में ये इसकी वैल्यू पूछ रहा था आपसे, आराम से इसकी वैल्यू निकाल लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो 200, इसकी वैल्यू आ जाती 200, और कितना आपने ऐड किया था, 20 ऐड किया था, -20 180 आ गया। ओके, सो अवर क्वेश्चंस वी आर अबाउट टू एंड, सिर्फ लास्ट दो क्वेश्चन बचे। आई वांट यू टू सॉल्व द क्वेश्चन। अरे वाह, ये भी मैं सॉल्व कर लूंगा, आई कैन ऑल्सो सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो लेट मी सॉल्व। देखो अपस्ट्रीम में होता क्या है, और एक होता है डाउनस्ट्रीम। इसमें क्या होता है, जो डिस्टेंस, मतलब जो स्पीड ऑफ बोट है, माइनस जो आपकी जो स्पीड होती है, स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम और वाटर, we can say. So it is going to be divided. But here, speed of boat plus speed of water, we can say, or the speed of the downstream, यहाँ पे ऐड होता है। तो we are having over here, ये दोनों ऐड करना है। So let's suppose this is d, s minus d plus s plus d, it is 2s। तो ये दोनों की वैल्यू आपने कितने निकल के आएगी, दिस इज 2s। तो उसके बाद आप आंसर निकाल लेना। लास्ट टू क्वेश्चंस बचे हैं। देखो टाइम टेकन कह रहा है, तो 25% मोर देन द टाइम टेकन टू, ठीक है। अगर इसमें आपको 4 टाइम लग रहा है तो इसमें आपको 5 टाइम लगेगा, तो दिस 5 रिप्रेजेंट दिस एंड दिस 4 रिप्रेजेंट दिस, ठीक है। अब इसमें से कोई भी आपको वैल्यू गिवन है, एनी वैल्यू विच इज गिवन टू, यू कैन इजिली सॉल्व, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन वी कैन सॉल्व विद द हेल्प ऑफ द रेशियो। देखो इसने पूछ लिया कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट फॉर द दिस किलोमीटर, तो इसमें कुछ नहीं करना। सो व्हेन द डिस्टेंस इज सेम, अगर डिस्टेंस सेम है तो आपको जो टाइम लगेगा, दैट विल बी द 2s, दैट विल बी द 2s, ठीक है। तो जो आपकी स्पीड, एवरेज स्पीड होगी, और जो आपकी डिस्टेंस है उसको आप ऐड कर लेना। तो 1280 इंटू 2 कर लेना, और जो स्पीड होगी वो इसमें आप यहाँ पे स्पीड रख लेना इंटू 2s। तो s जो स्पीड है उससे आपको इसको डिवाइड करना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ रहा है, 30 या 36, 36 आंसर आ रहा है, ठीक है। ठीक है, तो 20R16 निकाल लिया आपने, स्पीड कितनी है इसकी, 72 आई थी, 72 था, और लास्ट, अरे वाह, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, लास्ट इसका क्या आंसर दिखाना है क्या, इसका आंसर देखो ये रहा यार। लास्ट क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। आई विल ऑल्सो सॉल्व विथ यू गाइस, अगर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई कोई दिक्कत वाली बात नहीं अपने। लास्ट क्वेश्चन।
अच्छा, ये स्लीपिंग पार्टनर वाला भी है क्या? तो स्लीपिंग वाला जो है वो भी इसको मिलेगा। पार्टनर है तो इसमें ये भी निकालना पड़ेगा, 15% इसको और देना पड़ेगा यहाँ पे। परसेंट और इसको देना पड़ेगा। 12 है ना इसको, 12% है इसका। बाद में इसको दोनों को डिवाइड करेंगे। क्या पूछ रहा है ये? कविता का पूछ रहा है। तो इस रहा है क्या? चलो ठीक है, ये भी आपका आ गया। तो जो रेशियो है उससे भी आप निकाल सकते हो। इनिशियली आपने जो 8 है वो निकालना है। उसके बाद जो आपका अमाउंट है उसमें जो कविता है उसका भी आपको निकाल देना है। तो जो दोनों की वैल्यू है, सो आपका 8 + 15, 8 + 15 कितना हो गया? 23%। वो आपको इसमें से निकालना है, ठीक है। सो एक जो आपका परसेंटेज है उसकी वैल्यू आपकी आ रही थी 500 वैल्यू आ रही थी, ठीक है। तो आपका कितना है? 23 आया, तो इसमें से आप ये वाला निकाल दो। तो 50 - 50,000, ठीक है। तो दिस वैल्यू यू गॉट ओवर हियर। अब इसमें आप रेशियो निकाल लो। सो द टोटल रेशियो यू गॉट ओवर हियर 7 के बाद इसका आराम निकाल लो, ठीक है। ओके, आई होप गाइस सो यू हैव लाइक दिस सेशन। so basically this is your mock test. I am not going to give the exam, you are going to give them एग्जाम। सो आपको अच्छा लगा होगा। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो मैं आपको ये बताता हूँ। जो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे को लगा इसमें, कहाँ है वो, ये वाली DI। दिस DI इज इम्पोर्टेंट टू द स्टूडेंट हु आर अनेबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। ये DI को आप सॉल्व कर लेना प्लीज प्लीज, दिस इज इम्पोर्टेंट DI। अगेन सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना, एग्जाम में आपको ऐसी DI देखने को मिलेगी मिलेगी, ठीक है? और सर इसके बाद, DI और टाइप बता सर। उसके बाद आप क्या करना, ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है ऐसा आपका, देखो रॉन्ग नंबर सीरीज है, ऐसे क्वेश्चंस आपको अब और थोड़ी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज अगेन इम्पोर्टेंट, ठीक है। और फिर अपनी एक ये वाली DI आती है, ये वाली DI। तो दिस इज लिटिल बिट कैलकुलेटिव DI। तो इफ यू हैव द टाइम, डू सॉल्व दिस DI इन द लास्ट, ठीक है। सो आपको सेशन कैसा लगा, डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स और इन द कमेंट, ठीक है। सो आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन। इफ यू हैव एनी डाउट डू लेट मी नो। कोई भी आपका डाउट है दोस्तों? अब तो बहुत कम स्टूडेंट यहाँ पे, अच्छा बहुत कम बचे हैं, तो आपने अच्छा किया। ट्रेन वाले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट चाहिए, ठीक है। ट्रेन कहाँ गया अपनी? ट्रेन 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 अपन ने अर्थमेटिक यहाँ से स्टार्ट किया था ना। ट्रेन ट्रेन ट्रेन, लो 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 लो, मेरा ट्रेन। सो ये क्वेश्चन है, और इसके बाद में ये अपना आंसर है। स्क्रीनशॉट नंबर 1, स्क्रीनशॉट नंबर 2। तो मैं आपको वापस बता रहा हूँ, ये DI जरूर जरूर आप कर लेना बिफोर एग्जामिनेशन। और कैशलेट DI लास्ट में अटेम्प्ट करना। आई लाइक, इनिशियली आई डोंट लाइक, बट आफ्टर सॉल्विंग अप्रोक्सीमेटली 100 to 150 कैशलेट DI, आई यूज टू लाइक। तो अब मुझे अच्छा लगता है, हो जाता है सॉल्व। शुरू में सॉल्व नहीं होता था, बट अब मेरा एज ओवर हो गया है, आई एम नॉट एलिजिबल टू गिव द एग्जामिनेशन। आई ऑलरेडी क्लियर सो मेनी एग्जामिनेशन, so I hope you guys will also clear so many examination.
अपनी प्रिपरेशन अच्छे से आप रखना, कंटिन्यूअस मेहनत करना। हो सकता है कि आपका एग्जाम ना निकले, इन वर्स्ट केस आपका एग्जाम नहीं निकले, तो अगले साल आप जरूर जरूर एग्जाम देना दोस्तों। ठीक है, तो इसी के साथ गुड नाइट, जय हिंद जय भारत। ठीक है, ओके गाइस, गुड नाइट। Shreyan, suggestion, what suggestion you are asking, my friend?